Hello students, today I am discuss of the acid base and salt chapters and the third topics are salts. What is the salts? Types of the salts. Okay, so today I will start on the topic salts. What is the salt? When acid react with base, when acid react with base, when acid react with base in aqueous solution, in aqueous solution, aqueous solution, salt and water is formed. Salt and water is formed. Okay, students. When acid react with base, acid react with base in aqueous solution, salt and water, salt and water. Okay, student, this is called salt. This salt form, this salt form generally neutral. So neutral. This salt form is generally neutral is in nature. So this reaction is called neutralization reaction. Okay, this is salt of the neutral. So is this reaction is called neutralization reaction. Neutralization reaction. Okay, students. This salt form is a generally neutral nature. So its reaction is called the neutral reaction. For example of the salt, very simple example, one component of the one solution of the acid like HCl and one base NaOH. Okay, react with salt NaCl, NaCl and remove of the water H2O. This is simple salt NaCl. NaCl is a simple salt. See? Next reaction nitric acid HNO3 any base NaOH. Okay. Now H2O remove and KNO3 OH and ये K अगर आप यहाँ पर Na लिए हैं Na हो जाएगा NaNO3 plus H2 सोडियम नाइट्रेट. ओके, अब Na की जगह पर आप K ले लेंगे तो यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा. ये this is the salt. A salt compound when dissolved in water yield positive ion. Okay, a salt compound when dissolved in water, कोई भी salt compound को dissolve in water करेंगे एक पॉजिटिव आयन आएगा, पॉजिटिव आयन और दूसरा क्या आएगा निगेटिव आयन. ओके, जैसे ये आपका NaCl है, Na यहाँ पर ये पॉजिटिव फॉर्म में आएगा और Cl यहाँ पर क्या आएगा निगेटिव फॉर्म में आएगा. So all salts are the dissolved in water yield of the positive ion of the H plus ion and negative ion. Okay. Now different salts are created by NH2SO4.
sodium sulfate and A2SO4. It is like a salt, and the positive ion created by 2Na plus and negative ion SO4 minus 2. Okay, and all salt contain or dissolve in the aqueous solution of the water containing of the positive and negative ion. The positive ion and negative ion. Okay, student. Now next, calcium chloride. Calcium chloride or calcium plus 2 and twice here. All contains of the salt compound which when dissolve of water yield positive ion and negative ion. Now the main importance of the salt, types of salt. Types of salt. Six type of salts. Okay, students. Types of salt. Types of salts are very important of the salt topics because the verify of the different salts and the acidic salt, basic salt, okay, normal salt. So it is called the first types of the salt are called normal salt, and second acidic salt. Now third, basic salt. Normal salt, acidic salt, basic salt, double salt, double salt. Number five, mixed salt. Okay, student, mixed salt. And number six, complex salt. Okay, any the combination of the A and B, the normal condition of the simple examples of the NaCl, calcium oxide chloride, ANO3 are not difference of the example for the salt, but the normal salt is the very fine, acidic salt is the very fine, basic salt is the very fine, and double salt is the very fine. The simplest condition of the normal salt is condition is the condition of the all hydrogen plus are replaced is all the normal salt. Okay. Now first start of the normal salt. Okay, students. First start of the normal salt. A salt from the complete replacement by the H plus. Okay, or OH negative. ठीक है, a salt from by the complete replacement replaced by hydrogen ion acidic and basic heat of the normal salt. यानी किसी भी salt से जब H plus ion ऑल H प्लस आयन ध्यान रखिएगा ऑल H प्लस आयन रिप्लेस हो जाएगा तो वहां पर जब भी किसी भी कंडीशन में यानी कोई भी एसिड है ये एसिड और वहां पर जितना H प्लस है वो सारा रिप्लेस हो जाएगा ठीक है जब रिप्लेस हो जाएगा वहां पर जो सॉल्ट बनेगा वो होगा आपका नॉर्मल सॉल्ट ठीक है सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको जैसे H2SO4 ओके पहले एग्जांपल समझ लीजिए बाद में आ जाएगा आपका H2SO4 ओके अब ये क्या है एसिड है आपका और किसी भी बेस के रिएक्शन कराया गया NaOH तो कंडीशन ऑफ द नॉर्मल सॉल्ट क्रिएटेड ऑफ द ऑल H plus are replaced ओके ऑल H plus are replaced तो H plus यहां पर 2 है तो ऑलरेडी इसको बैलेंसिंग के लिए इसको भी 2 कर देंगे यहां पर हो जाएगा Na2SO4 ओके Na2SO4 plus twice H2O okay students so all H plus are replaced in acidic medium
एसिड से सारे H प्लस एटम जब रिप्लेस हो जाएंगे तो जो सॉल्ट बचेगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट हो जाएगा। ओके, यानी यहाँ पर ये नॉर्मल सॉल्ट हो जाएगा। वैसे नहीं करना आपको, कोई भी कंपाउंड ले लीजिए और उसमें डायरेक्ट कंप्लीशन करवा दीजिए। तो रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन ऑफ द एसिड इज द नॉर्मल सॉल्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट आप कर लीजिए HCl और प्लस यहाँ पर ले लीजिए बेटा NaOH। ओके, अब यहाँ पे ये क्या है, एक ही H प्लस है, ये पूरा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा NaCl और प्लस H2O। इट इज कॉल्ड द नॉर्मल सॉल्ट। ये क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल सॉल्ट। बट दिस कंडीशन ऑफ द अनदर फॉर्म H2SO4, now 1 drops of the NaOH। ओके, अब कंडीशनिंग आपको 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप, अब केवल यहां से एक H जाएगा, यहां से ये H2O रिमूव कर देगा बेटा, एक H बच गया, इसकी जगह पर Na आ गया, तो देखिए क्या हो गया, NaHSO4। ठीक है, यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो आप देखिए इस एसिड से, ये जो आपका एसिड है, इसमें से केवल एक H प्लस गया हुआ है, एक H प्लस नहीं गया। ओके, यानी ओनली 1 H प्लस गया है और एक H प्लस बचा है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल सॉल्ट नहीं होगा। यानी NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट आर नॉट नॉर्मल सॉल्ट। ओके स्टूडेंट्स, यानी ऑल एसिडिक कंडीशन आर द रिप्लेसमेंट बाय द H प्लस एटम। किसी भी एसिड से उसके सारे H प्लस एटम जब हमारे क्या हो जाएंगे, रिप्लेस्ड हो जाएंगे, तो रिप्लेस्ड होने के बाद जो सॉल्ट बनेगा वो आपका होगा नॉर्मल सॉल्ट। ओके, एकदम सिंपल एग्जांपल्स है, आप लोगों ने बता दिया। Na2SO4 नॉर्मल सॉल्ट, NaCl नॉर्मल सॉल्ट, बट NaHSO4 नॉट नॉर्मल सॉल्ट। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर NaCl ये भी आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद Na2SO4 आया था तो वो भी हो गया आपका, NaNO3 ये भी हो जाएगा, NaNO3। यानी ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द रिप्लेसमेंट बाय H प्लस एटम आर एसिडिक। ठीक है, K2SO4। ओके, देखिए ये सब सारे नॉर्मल सॉल्ट हो जाएंगे, अभी आपको वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर 2 में आते हैं, acidic salt। Acidic salt, what is the acidic salt? The salt form of the partial replacement। ओके, यहां पर partial replacement होगा, partial replacement of hydrogen atom। ठीक है, partial replacement of hydrogen ion in acidic। हाइड्रोजन आयन जो है वो एसिड से पार्शियल होगा। ओके, पार्शियल कैसे होगा उसको हम आपको अच्छे से आपको समझा रहे हैं, बहुत अच्छा रिएक्शन हो जाएगा। जैसे अभी आपने लिया था H2SO4, कोई भी एसिड लेंगे क्योंकि एसिड पर डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए आपने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करा दिया KOH से। अब देखिए पार्शियल मतलब टोटल H प्लस नहीं, पार्शियल हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां से क्या करेगा, रिमूव कर देगा, एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा, इसका OH ले लेगा, बन जाएगा H2O। ओके, और अब क्या बचा अपने पास K, तो KHSO4। ओके, दिस इज कॉल्ड द एसिडिक सॉल्ट। ओके स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड द एसिडिक सॉल्ट। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट इज एसिडिक सॉल्ट। मतलब ऐसा सॉल्ट जिसमें से सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना होके केवल पार्शियल हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, वो हमारा होता है एसिडिक सॉल्ट। ओके, अगर टोटल H प्लस यहां से डिसॉल्व कर देंगे, देखिए दोनों H अगर चला जाता है, इसको हम ट्वाइस कर देते हैं, तो K2SO4 हो जाएगा, यहाँ पर रिएक्शन चेंज हो जाएगा, ट्वाइस H2O रिमूव होगा और यहाँ पर हो जाएगा K2SO4। ये जो K2SO4 हो जाएगा, इट इज कॉल्ड द normal salt because the all H plus are replacements of the acidic condition, acidic। ओके, तो पार्शियल रिप्लेसमेंट एकदम समझ में आ गया होगा सबको, बिल्कुल सिंपल है, आप इसको देख लीजिएगा, ये आ जाएगा। एसिडिक सॉल्ट में आपको एक बात ध्यान रखना है, किसी भी एसिडिक सॉल्ट में
जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, यानी HSO4। ओके स्टूडेंट, तो इसमें देखिए एक हाइड्रोजन आपका दिखाई देता रहेगा। अगर वन हाइड्रोजन आपको दिखाई देता रहे तो समझ लीजिए वो एसिडिक सॉल्ट है। अभी बेसिक सॉल्ट आएगा तो इसी में OH हो जाएगा, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ द OH। तो यहाँ पर जो कंडीशन आ जाएगी बेसिक की आ जाएगी। ठीक है, अगर किसी भी सॉल्ट में H आपको दिखाई दे रहा है, H है साथ में, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, वहां पर वो एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी HSO4 क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। अगर KHSO4 की बात करते हैं तो ये भी क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, इस प्रकार के जितने भी है ये सारे एसिडिक सॉल्ट होते हैं। कंप्लीट रिप्लेसमेंट। अब नंबर थर्ड, आपका थर्ड नंबर है बेसिक सॉल्ट। ओके, तो बेसिक सॉल्ट ऑफ द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ द पार्शियल रिप्लेसमेंट partial replacement of hydroxyl ion when the base condition। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, salt produced of incomplete neutralization is called basic salt। ओके स्टूडेंट, यानी यहाँ पर पार्शियल रिप्लेसमेंट हो जाएगा हाइड्रोजन आयन का बेसिक से। कोई भी बेस से क्या होगा, पार्शियल माने टोटल OH रिप्लेस्ड नहीं होंगे। जैसे आप ऊपर देख रहे थे H+ के लिए, इसमें भी टोटल रिप्लेसमेंट नहीं होगा। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं लेड हाइड्रोक्साइड, मान लेते एग्जांपल हमने ले लिया लेड हाइड्रोक्साइड। अब ये देखिए हाइड्रोक्साइड है, किसी भी एसिड से रिएक्शन करा दे रहे हैं, HNO3 से करा दे रहे हैं, बेटा ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया। अब पार्शियल का मतलब क्या है, यानी वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस होगा, वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस। अगर दोनों हो जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट। अब देखिए यहाँ से वन OH जाएगा और इसका H ले लेगा, H2O तो रिमूव हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास बच क्या रहा है, यहाँ पर देखिए Pb, ओके, और ब्रैकेट में क्या है OH, और यहाँ पर हो गया आपका NO3। तो देखिए PbOH NO3 हो गया। ठीक है, बेसिक लेड नाइट्रेट इसको बोलते हैं। ये लेड नाइट्रेट है, इसमें लगा देंगे बेसिक लेड नाइट्रेट। ओके स्टूडेंट, यानी पार्शियल, उसमें जितने भी प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा उसमें से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचा होगा, वो आपका हो जाएगा पार्शियल। ओके, नेक्स्ट आप एग्जांपल ले लीजिए क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। ये क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करा दीजिए HCl से किसी भी। अब देखिए एक OH निकलेगा, यहाँ से H2O रिमूव कर देगा, अब बचेगा क्या, Cu ब्रैकेट में OH और यहाँ पर क्या है Cl, CuOHCl, CuOHCl। ठीक है, यानी कॉपर हाइड्रोक्सिल क्लोराइड वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट आर कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। ओके, बहुत अच्छे से समझ लीजिए बेटा, किसी में ऐसे सॉल्ट जिसमें ना तो H+ दिखाई दे ना तो OH दिखाई दे, वो हो जाएगा नॉर्मल सॉल्ट। अगर H दिखाई देता है तो एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा, दैट इज पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ द H+ आयन। अगर वहां पर OH वन OH दिखाई दे रहा है तो वहां पर हो जाएगा बेसिक सॉल्ट, बिकॉज द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन। Okay, now next, double salt। Double salts, it means two salts are formed of the mixing equimolecular shared solution to simple salt। Okay students, two salt यानी two salt are normal salt, acidic salt और basic salt। Double मतलब two salt, two salt containing of the components or the double salt, calcium carbonate and magnesium carbonate। Okay, double salt are the famous
Examples of the potash alum. Potash alum formula K2SO4 into Al2SO4 का whole price into 24S2. Okay, one salt and another salt. This is called the dotted line. अगर डॉट है किसी की दो सॉल्ट के बीच में, वो सारे सॉल्ट क्या हो जाते हैं, डबल सॉल्ट हो जाते हैं. डबल सॉल्ट आर फॉर्म बाय मिक्सिंग इक्विमोलर saturated solution to simple salt. Okay, the crystalline shared solution for the double salt. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नेम लिख दीजिएगा. पोटाश एलम जिसे आप फिटकरी बोलते हो, ये फिटकरी का फार्मूला है. ओके, दो तीन एग्जांपल इसमें बहुत सिंपल है, उसको आप लोग कर लीजिएगा, हो जाएगा. कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट. दूसरा है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट. अब देखिए बेटा, यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, मतलब दो सॉल्ट है यहाँ पर. अब दो सॉल्ट है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डबल सॉल्ट हो जाएगा. इसको डोलेनाइट बोलते हैं. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है डोलोनाइट. एक होता है मोहर सॉल्ट. मोहर सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट वो भी है. फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट. फेरस सल्फेट into अमोनियम सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस SO4. इसे आप बोलते हैं फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट. इसका जर्नल नेम जो होता है वो मोहर सॉल्ट होता है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें जरूर आ जाता है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये मोहर सॉल्ट. ओके, मोहर सॉल्ट, पोटाश एलम और डोलोनाइट, ये तीनों का आप फार्मूला लर्न कर लीजिए. एक नंबर कंपलसरी है आपका एग्जाम के लिए. ओके, द फार्मूला ऑफ द पोटाश एलम, डोलोनाइट एंड मोहर सॉल्ट. सब में सॉल्ट लगा दीजिएगा. ओके, द डॉटेड प्रेजेंट इन द टू सॉल्ट कंटेनिंग ऑफ द crystalline condition, it is called the double salt. Example noted with the normal salt, acidic salt and double salt. K2SO4 into Al2SO4 into twice H2O. Potash alum, calcium carbonate, magnesium carbonate, dolenite, ferrous sulfate and ammonium sulfate. या PSO4 into NH4 का whole twice SO4. It is called the Mohr salt. Now very important salts of the mixed salt. मिक्स सॉल्ट, इसी सॉल्ट में बच्चों को वेरीफाई करने में प्रॉब्लम्स हो जाती है. ये तो सारे सिंपल है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट है जिसमें कोई भी हाइड्रोजन OH नहीं दिखाई देगा. इसमें पार्शियल होगा रिप्लेसमेंट, एक H जरूर होगा एसिडिक वाले में. बेसिक वाले में बेटा एक OH जरूर होगा. डबल सॉल्ट में डॉट लगा होता है. बहुत स्पीड से आप AB है ना नोट कर लेंगे. बस मिक्स सॉल्ट में थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है कि इसमें 2 कैटायन और 2 एनायन होते हैं. ये ध्यान रखिएगा, इसमें 2 कैटायन और 2 एनायन. ठीक है, यानी 2 पॉजिटिव वाला या 2 निगेटिव वाला. ठीक है, 2 पॉजिटिव वाला कैटायन या 2 निगेटिव वाला रहेगा जिसमें से H प्लस और OH माइनस ना हो. मतलब 2 कैटायन हो बट उसमें से H प्लस ना हो, या 2 एनायन हो उसमें से OH निगेटिव ना हो. ये ध्यान रखना भाई. कैटायन और एनायन में तो ये भी आते हैं, बट 2 कैटायन के साथ अगर ये है तो मिक्स सॉल्ट नहीं होगा. एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं, पहले आप जनरली समझ लीजिए. when the any salt present in the 2 cation or 2 anion but not or the H plus or OH negative, यानी H plus or OH negative नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर वो हो जाएगा तो वहां पर मिक्स सॉल्ट नहीं होगा. जैसे मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, देखिए एग्जांपल
यानी HSO4। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या मिक्स सॉल्ट मतलब टू कैटायन है, इसमें देखिए यानी प्लस बी कैटायन है, H प्लस बी कैटायन है, टू है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो रहा है, एनायन एक है जिससे मतलब नहीं है। ठीक है, R मैंने लगाया हुआ है, यानी टू कैटायन R2N है, बट नॉट प्रेजेंट ऑफ द H प्लस एंड OH, बट इसमें एक H प्लस प्रेजेंट है, इट इज नॉट मिक्स्ड सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर H दिखाई दे रहा है, दो कैटायन है, बट उसमें से एक H प्लस है, तो ये ऑलरेडी मिक्स कैटायन नहीं होगा, ऑलरेडी ये क्या है, इसमें H दिखाई दे रहा है, एसिडिक सॉल्ट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द मिक्स सॉल्ट, यानी के सोडियम पोटेशियम सल्फेट। अब देखिए सोडियम पोटेशियम सल्फेट। ओके, अब आप देख लीजिए इसमें दो पॉजिटिव कैटायन है, ये Na है और ये प्लस है। ओके, इसके साथ एनायन जुड़ा हुआ है, ये कंडीशन फॉलो अप हो रही है, इट इज कॉल्ड मिक्स्ड सॉल्ट। ये क्या है, मिक्स्ड सॉल्ट बेटा, इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मिक्स्ड सॉल्ट होगा क्योंकि यहाँ पर टू कैटायंस आर प्रेजेंट, नो बेसिक एसिडिक और नॉर्मल, नॉट डबल, ओनली मिक्स्ड सॉल्ट्स ऑफ द सोडियम पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, अब देखिए सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक बेटा, अगर इसको हम वेरीफाई करेंगे अलग अलग, तो देखिए Na प्लस एक कैटायन, ओके, पोटेशियम दो कैटायन, तो आपकी डिफिनेशन फॉलो अप हो रही है, इसके साथ जुड़ा हुआ है CO3-2, इससे मतलब नहीं, तो दोनों कैटायन है, इसमें H प्लस नहीं है, तो सो इट इज कॉल्ड द मिक्स्ड सॉल्ट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बहुत आता है, दिस इज सॉल्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। अब देखिए आप CaOCl2 are mixed salt because the condition of the Ca+2 O negative and Cl2 negative। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आप देखिए, यहाँ पर क्या होगा OCl और एक में क्या हो जाएगा O हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों निगेटिव कंडीशन में है, मतलब टू एनायन फॉर्म हो रहा है, टू एनायन फॉर्म हो रहा है, इट इज कॉल्ड द मिक्स्ड सॉल्ट। सारे स्टूडेंट इसको अच्छे समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वेरीफाई करना होगा, आपको तमाम सॉल्ट दे दिए जाएंगे, उसी सॉल्ट में आपको एरो लगाना होगा, यह बताना होगा बेटा कि नॉर्मल सॉल्ट कौन सा है, एसिडिक सॉल्ट कौन सा है, बेसिक सॉल्ट कौन सा है, डबल सॉल्ट कौन सा है, मिक्स्ड सॉल्ट। तो ये दोनों, ये तो एकदम सिंपल है। ठीक है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट है, उसमें कोई हाइड्रोजन OH नहीं होगा, इसमें एक हाइड्रोजन होगा, इसमें हाइड्रोक्सी होगा, और डबल सॉल्ट में डॉट लगा होगा, इसमें दो कैटायन होगा और दो एनायन, जिसमें से ना H प्लस होगा ना OH होगा। लास्ट आया आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसको भी आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल है। ठीक है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में हमेशा ये ब्रैकेट लगा होता है। ठीक है, ये ब्रैकेट जैसे लगा आप देख लो तो आप समझ लीजिए कि वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स की बात नहीं है, सारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आप एकदम से अच्छे से निकाल लोगे। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के लिए आप कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, जैसे कैल्शियम कॉपरिक अमोनियम सल्फेट, ये ब्रैकेट जरूर होगा, जैसे ये हो गया Cu, यहाँ पर हो गया NH3 होल 4, यहाँ पर हो गया, मान लेते हैं। ठीक है, ये पूरे ब्रैकेट लग के यहाँ पर लग गए सल्फेट। ठीक बेटा, तो पहली बात देखिए, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। अगर ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो आप समझ लीजिए ना तो नॉर्मल है, ना एसिडिक है, ना बेसिक है, ना डबल है, ना मिक्स्ड है। ठीक है, ये ऑलरेडी आपका क्या है, यहाँ पर जो भी है ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, जैसे ठीक है, बहुत कंपाउंड है, जैसे ये K3, ठीक है, ब्रैकेट लग गया, और यहाँ पर होगा FeCl, ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेश नेम हम बाद में बता देंगे आपको, लिख लीजिएगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड,
तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है आपका, ठीक है, लॉन्ग ब्रैकेट। इससे इसका मतलब ये सारे जो हो जाएंगे ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे जितने भी हैं ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो जाएंगे। Okay, students. Now, types of the salt is the very important salt because the match of A and B different salt के salt create कर देंगे और आप एरो लगा दीजिएगा, आपको आपको कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, एकदम सिंपल है। कल मैं इसकी आपकी बहुत अच्छे से अगर नेक्स्ट टाइम में रिहर्सल करा दूंगा जिसमें ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सारे सॉल्ट का ऐसे नेम दे देगा और आपको बोल देगा ये ए कर देगा और यहाँ पर बी हो जाएगा। अब बेटा इसको मैच करना पड़ेगा, ठीक है। मैच करने के लिए जैसे मैं आपको देखिए एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, आप अपने से अपने हिसाब से कर लीजिएगा। कोई भी आगे पीछे दे देगा, जैसे यहाँ पर आपका दे दिया मान लीजिए NaCl दे दिया, ठीक है। कोई भी यहाँ पर दे दिया HSO4 दे दिया, ठीक है। यहाँ पर OH का होल ट्वाइस या Cl दे दिया, ठीक है बेटा। यहाँ पर आपको दे दिया पोटेशियम फेरोसाइनाइड दे दिया, Cn का होल 6, समझते जाइए, ठीक है। यहाँ पर CaOCl2 दे दिया और बेसिक हो गया और नॉर्मल सॉल्ट भी हो गया और आपका दे दिया K2SO4 into Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। अब बेटा इसको मैच कराना है आपको, ठीक है। मैच कराना है कि कौन सा सिंपल सॉल्ट है कौन सा डबल सॉल्ट है, तो डेफिनेशन के द्वारा आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको ये दिखाई दे रहा है, मैंने बताया था, ये आपको देखिए डॉट लगा है, इट इज कॉल्ड ड्यूट सॉल्ट, तो आप ड्यूट सॉल्ट नहीं लगा दीजिएगा। ओके, नो प्रेजेंस ऑफ द H प्लस आयन एंड OH आयन, इट इज कॉल्ड द नॉर्मल सॉल्ट, ये नॉर्मल सॉल्ट है आपका। Okay, one hydrogen present in it is called the acidic salt. Okay, students, one hydroxyl group present in the basic salt. This bracket are present, it is called the complex salt. And two cations or two anion present of the bleaching powder, it is called mixed calcium oxychloride. Okay. तो जनरली अगर अच्छे से आप ये देख लिए होंगे, बाद में मेरा वीडियो भी देख लीजिएगा आप, तो आप वेरीफाई कर पाएंगे कौन सा सॉल्ट है। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपकी बुक में भी दिया है, एनसीईआरटी में भी बेटा दिया गया है, और कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठाता है ये कंपलसरी है, 1 नंबर क्वेश्चन आपको कंप्लीट होता है। ओके 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 ओके, वेल, हैव अ नाइस डे। ओके।